Morning, everyone. I okay. Good Yeah, good morning, morning. everyone. Yeah, good morning, Akansha. Yeah, I hope you all are having a great day. Good morning, ma'am. Yes. May I start the session now? Yeah. Yes, Yes, please. ma'am. We're having enough candidates. Okay. So, see, this session is, as per the request of two candidates who requested me to, to have the session on the norms and the protocols which we should or we must follow in the HR interview part or the technical interview, whatever so interview part in the professional world. Okay, so I'm starting the session by sharing my screen. Before sharing my screen, before sharing my screen, may I ask someone what is today's discussion description is about, like today's topic? Anyone from you? Arvind, Ayush? Yeah, there is session regarding an interview norms and protocol session. Okay, so what do you think about this? Like, what kind of a pictures or the visuals you are having in your mind? Like interview norms that what is the terms of condition of interview or during the interview and the protocol of the session, like attire during the interview, if we are appearing in virtual mode or same follow in the physical mode, Mm-hmm. I guess. Yes, yes, you are right. Okay, Gagan, do you want to add something? हम क्या करने वाले इस सेशन में आज? Yes, Hargun. माइट बी जेस्चर्स एंड एट्रीब्यूट्स जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए इंटरव्यू Mm-hmm. और मतलब बेसिक एटिकेट्स Basic etiquettes, yes. ताकि सो दैट वी कैन स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड while facing an Uh-huh. Okay, okay. Good, Hargun. Anyone from the girls? Kajal? Yes, Aisha. Yeah. So, how could we cope up to the expectations from the HR? So that might be, a valid point where we can understand what exactly the company needs and how could we cope up to the expectations. So that Mm-hmm. is what it's insightful. We can, Yes, we great. can expect that. Yeah. Okay, then. I'm sharing my screen and let's see what we should do, how we should, prepare and what the protocols or the norms we have to follow in any interview, whether it's offline, online, whatsoever. Okay, my screen is visible. Yes. Yes, now. Yes. Okay, so requesting everyone to please mute their self. Okay, if you want to speak up anything, just raise your hand and then you can unmute and answer the questionnaire or any doubts. Yes, yes, Abdul. Okay. Why my the mic is getting mute? Okay. 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 Let me start with this. I hope it's visible. Should I zoom in something? No, it looks good. Yeah. No, it's perfect.
Is it good? Okay, so yeah, the topic is the HR interview norms, protocols, and the selection criteria. What are those? Okay. I'm starting with the first point, which is HR interview norms and protocols. इसके अंदर भी आपके 3 parts हैं, ठीक है. First है आपका common interview etiquettes. Simple, okay. Arrive on time, very necessary or mandatory. Fully prepared with your materials and thoughts organized. Fully prepared with your materials means, you know, your hard copy of your CV in a proper file or a bag, you can say, okay. And thoughts organized, like whatever you are feeling now, uh, nervousness or confident, whatever thoughts you are having, it just organize it, okay, in your mind, that yeah, I have to behave like this, I have to, you know, answer like this. जो भी है अपने mind में thoughts उसे organize करके, you know, fully prepared रहो that yeah, I'll do it, okay, and I have to do it. Don't be, you know, kind of कि overthink करने लग जाओ, insecure हो जाओ. वो वाली चीज तो देखो होती है, being honest, but नहीं करोगे, चैलेंज नहीं लोगे, तो फिर क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है. फर्स्ट हमने ये सीख लिया, अराइव ऑन टाइम, वॉट एवर द टाइम गिवन बाय द HR. If it's 10 a.m., please arrive that, you know, in that premises before 10 a.m., not at 10 a.m. exactly even. ठीक है, उससे आपको VIP ट्रीटमेंट थोड़ा देना पड़ेगा. ओके, हम मानते हैं कि लाइक यू नो वी आर गोइंग टू वर्क फॉर देम एंड गेट पेड, बट यस, इन द इंटरव्यू पार्ट दे behave like a superior, and we have to, you know, behave like, you know, under that superiority. The second is maintain meaningful eye contact. Meaningful, okay, not every time like, you are just focusing on, you know, HR's eyes, not that, but yeah, while you are speaking and active listening, okay, you have to be, you know, be attentive, a patient listener, कि वो क्या बोल रहा है, just make you know, the eye contact, look interested, and just evaluate the thoughts or the questionnaire what the HR is asking to you. The third is respond with honesty and transparency. There is very, you know, not a huge, we can say, but the difference between honesty and transparency. Honesty is, okay, if HR is asking why you have left your previous job, okay, and you are giving the response with the honesty that yeah, this was the matter. Suppose the matter was my director or the, you know, the HR terminated me. This is the honesty. Maybe this is this could be a truth, है ना, कि क्या पता उसने सच में आपको terminate कर दिया. But the transparency is, okay, I have done that and they have, you know, terminated me. This is the transparency that you are speaking the transparent thing, whatever happened at that, you know, in your previous job. कि मेरे साथ ये हुआ, then ये हुआ, and then उन्होंने मुझे terminate किया. आप सिर्फ कंक्लूजन दोगे कि हाँ मेरी लास्ट जॉब इसीलिए छूटी बिकॉज दे टर्मिनेटेड मी, तो उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं कि मे बी दिस गाय हैव डन समथिंग, और मे बी ये इतना, यू नो, इसने कुछ किया हो या कुछ भी ऐसा, है ना. डोंट गिव दैट, यू नो, द थॉट्स, एक उसको प्रिपरेशन और उसके माइंड में वो थॉट आने ही मत दो. जस्ट आंसर विद, यू नो, रिस्पॉन्ड विद ट्रांसपेरेंसी. इंश्योर जो आपका, यू नो, क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी इन द सेंस कि जिस चीज के लिए आप गए हो, लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी जो आपको मिलना चाहिए, वो इंटैक्ट रहे. इंटैक्ट इन द सेंस, यू नो, काइंड ऑफ यूनिफॉर्म और या कांस्टेंट. ओके, तो इन तीनों पॉइंट्स में अराइव ऑन टाइम, मेंटेन द मीनिंगफुल आई कांटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड विद ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी, इन तीनों में किसी को कुछ ऐसा, क्योंकि आई गेस ये सब हमें पता होता है ना, बस somehow हम, you know, follow नहीं कर पाते, maybe of, you know, insecurity, overthinking, or, you know, many thoughts are there. There is like your mixed feelings in that, you know, at that time. इन तीनों में से किसी को कोई डाउट है कुछ? Anyone? No, na? It's simple, I guess. Right? Yes. Yes. Okay, then. Moving forward. The second is dress code and body language. Very ये मैंने शायद I guess grooming में बताया था. Opt for a formal or a business casual attire. Casual, not fancy, not, you know, shimmering, nothing. Just a casual attire.
but a business casual attire, not a kind of a casual attire you wear at home or in a in a outing. You have to be formal. Ensure you present yourself professionally. ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ मैं प्रोफेशनल लग रहा हूँ, ठीक है। और सबको पता होता है कब वो फॉर्मल लग सकते हैं और कब नहीं। तो इसमें तो आई डोंट थिंक सो किसी को ये बताने की जरूरत है कि शर्ट फॉर्मल होती है और टी शर्ट इनफॉर्मल, राइट। Second is maintain a confident posture, which is, standing or sitting straight, a 90-degree posture, and avoid defensive gestures. Defensive in the sense, जो kind of, distract करे आपके posture से, like crossing your arms, okay, you are crossing your legs, or maybe you are doing some kind of a thing कि आपने अपने arms table पे रख लिए and then you are answering to that HR. No, you have to be, sit straight just, okay. A good body posture, just hands on your thighs, and just make the eye contact and answer all the questions whatever she or he is asking. इसमें किसी को कुछ वैसा बॉडी लैंग्वेज में, बिकॉज आप अगर नर्वस भी हो गए, समटाइम्स होता है कि हमें किसी को कुछ रैश होने लगते हैं एकदम से, होता है ओवर थिंकिंग में, या फिर आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, या फिर यहाँ वहाँ ध्यान जाता है। डोंट डू दैट। एटलीस्ट फॉर दैट 15 मिनट्स आपको वो नहीं करना होता है। वो HR आपके टेक्निकल स्किल्स और कॉमन इंटरव्यूज कॉमन इंटरव्यूज क्वेश्चन से ज्यादा वो आपकी बॉडी लैंग्वेज जज करती है उस टाइम। तो ट्राई करो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, भले ही आप कितना प्रिटेंड कर लो, आप प्रिटेंड कर लो वहां पे क्या यू आर कॉन्फिडेंट, भले ही आप ना हो, बट उस टाइम पे आपको करना पड़ेगा टू गेट सिलेक्टेड। इसमें कुछ तो दिस इज इजी। इसमें किसी को कुछ डाउट? No, ma'am. नो ना? Yes. I don't think so. Yes, anyone? Gagan, Ajaz, Abhijit, Abdul? You have joined this session, so I hope you can, you must respond something. Last time भी अब्दुल आपने कुछ respond नहीं किया था। दानिश, काजल, हरगुन? Ma'am, all clear. All clear, madam. So you have to respond here. Don't force me to take your names. Okay. Okay, ma'am. Yes, the third is communication tips. Yeah, ये अगर आप तीनों चीजें follow कर रहे हो, the common interviews etiquettes, the dress code, the communication tips, ये तीन आप ये समझ लो एक kind of very kind of the three mantras. Okay, अगर आपको टेक्निकल स्किल्स कम भी आती है, बिकॉज ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं आती होगी, है ना। इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, सिलेक्ट हुए हो तो आती तो होगी, है ना। कम आती है, लेट सपोज 80% की आती है, आप 80% आपका बस CV मैच कर रहा हो उस GD से, बट यू स्टिल नीड दैट जॉब। ये 3 पॉइंट्स आप अगर 10 on 10 हो, देयर इज 200% चांसेस टू गेट सिलेक्टेड। 200%, क्योंकि HR जो होती है उसको टेक्निकल नॉलेज इतनी नहीं होती है। ऑब्वियसली वो आपका टेक्निकल पार्ट किसी और से करवाएगी, बट जब वो HR इंटरव्यू ले रही होती है तो मेन उसका फोकस होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, हाउ यू आर बिहेविंग, हाउ यू आर आंसरिंग, ओके, व्हाट द काइंड ऑफ अ ड्रेस यू आर वेयरिंग, एटिकेट्स है कि नहीं है, आई कांटेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनको छोटी छोटी चीज भी ना बहुत नोटिस में आ जाती है। ठीक है, अगर हम जैसे कम्युनिकेशन टिप्स में आते हैं, आर्टिकुलेट योर थॉट्स विद क्लैरिटी एंड अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। इज जॉइनिंग नाउ। Okay. Articulate your thoughts with clarity and sense of confidence. जो भी आप बोलना चाहते हो, पहले देखो हमें पता होता है ना, HR इंटरव्यू जाने में पहले कि वो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकती है और हमें कैसे कैसे आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। उन आंसर्स को विद क्लैरिटी, है ना, काइंड ऑफ इवेल्युएशन, उसे इवेल्युएट कर लो। अगर वो ये पूछेगी तो मैं ये बोलूंगा, और अगर उसने क्रॉस क्वेश्चन करके ये पूछा तो मैं ये बोलूंगा। जस्ट प्रिपेयर ऑल फॉर दैट। पहले से कर लो आप, क्योंकि आपको पता है ना, आप खुद को ज्यादा अच्छे से जानते हो कि आप क्या क्या आंसर कर सकते हो और क्या नहीं। और जो नहीं कर सकते उनके लिए अगर प्रिपेयर कर लोगे ना, तो जो आता है वो तो इजीली हो जाएगा, जो नहीं भी आता होगा ना ऑन द स्पॉट, वो भी आप क्रैक कर लोगे। ठीक है, लेट सपोज हमें पता होता है कि HR हमारे बैकग्राउंड के बारे में पूछेगी, है ना, तो हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं।
बट हम ये नहीं सोचते बैकग्राउंड में उसने अगर ये पूछ लिया कि वेयर यू बिलोंग फ्रॉम और व्हाट आर द द फेमस सिटीज देयर और द फेमस फूड्स और समथिंग, कुछ भी ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए, यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट, यू आर नॉट, है ना। तो वो चीज क्या करो, पहले से अपने माइंड में क्वेश्चंस ब्ला ब्ला लाइक व्हाटसोएवर 100-200 क्वेश्चंस जो भी है, अपने माइंड में क्वेश्चंस खुद बनाकर खुद को आंसर्स एक बार दे दो, ठीक है, ताकि वो कुछ भी पूछे, है ना, आउट ऑफ अगर आपने 100 क्वेश्चंस बना रहे हो अपने माइंड में, तो वो 10 ही पूछेगी, बट एटलीस्ट वो 10 ऐसे होंगे कि आप क्लैरिटी और सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ दे पाओगे, आपको उन 90 का लॉस फील नहीं होगा कि मैंने उसके लिए भी प्रिपेयर किया था। गेटिंग इट? Yes, ma'am. Yes, madam. Only one yes. Guys, don't force me to take your names again. At least say yes, No, so ma'am, it's clear. I can carry forward, Yes, move ma'am. forward. No, ma'am, it's clear. Okay. Okay. The B point of the third subtopic is steer clear of slang. ये बहुत ही 3 words हैं इसके अंदर, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्लैंग, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्लैंग। एक्सेंट हम चेंज नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगता है। इफ यू आर फ्रॉम योर नेटिव इज समवन इज फ्रॉम विलेज, ठीक है, लेट्स सपोज फ्रॉम यूपी और फ्रॉम बिहार, और उसके वो एक्सेंट में ही नहीं है कि वो एक ब्रिटिश या फिर यूके या फिर दिस एक्शन वो कर पाए कैरी, है ना, नहीं हो पाता, बहुत ही टफ होता है ये सब एक्सेंट्स यूज करना और खुद का भी एक्सेंट बनाना, क्योंकि वो टच आ ही जाता है ना उस टोन का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी उस चीज को आपके ड्रॉबैक में नहीं ले जाएगी, कभी भी नहीं कि हाँ यार उसका एक्सेंट ऐसा है, कभी नहीं। वो क्या नोटिस करती है, आपकी इनफॉर्मल लैंग्वेज, ओके, और स्लैंग्स क्या क्या होते हैं, whatever, not at all, you can't these kinds of words in any interview, any, whatever, hi-fi, doing hi-fi, hi is also a slang, informal language we can't use with in the professional world, we use hello, right, we can't say hi bye, no, we say जब हम लीव करते हैं उसमें तो हम we say good evening or good afternoon, whatsoever, have a great day. We can't say bye to a HR or anyone from the if you are giving the interview. So ये कुछ slangs है, आप इसे एक बार YouTube पे कर सकते हो या फिर आप Google कर सकते हो कि जो slangs होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं, ट्राई करो उसे बिल्कुल भी अपनी पर्सनालिटी में फॉर दैट हाफ एन आवर मत आने दो, वो अपने आप स्लैंग्स अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली के साथ रखो, बट उस टाइम पे आपको प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी। इफ शी इज आस्किंग ओके जस्ट आंसर मी यस और नो, यू कांट यूज द इनफॉर्मल, अरे बताया तो था अभी, नो यू कांट यूज दैट लाइक दिस, है ना मैम, एज आई हैव टोल्ड यू, नो आप नहीं कर सकते। अगर वो एक ही क्वेश्चन आपसे 10 बार पूछ रहे, यू हैव टू रिस्पॉन्स 10 times with that same understanding and the formality with a professional tone. You can't be loud, you can't be that much low, you have to use a very bold professional tone. इसमें अब बताओ। yes Understood. yes Sonia, I said, ma'am, I understood. understand, okay, anyone कुछ इसमें कुछ पूछना है, कुछ भी? No, madam, got it. No, ma'am. only 3 no's, anyone? No. ओके, तो आई होप ये जो 3 पॉइंट्स हैं आप इसे अपनी हैबिट में अभी से ले आओ, ठीक है। आप अपने ये जो एक्सेंट्स होते हैं, ये जो स्लैंग्स होते हैं, इसे स्विच करना सीख लो, ठीक है। स्विच इन द सेंस कि ये कोई नहीं बोला जा रहा कि जब आप ऑफिस में इंटरव्यू के बाद आप अपना हो जाओगे, सी इंटरव्यू तक आपका ये छोटा मोटा जो होता है ना, ये काइंड ऑफ नॉर्म्स, ये तब तक ही फॉलो होते हैं। इंटरव्यू में जैसे आप इफ यू गेट सिलेक्टेड, जॉइनिंग डेट आ गई, सब कुछ आ गया, आपके फ्रेंड्स बन गए ऑफिस में, whatever you want to do ना do, like yeah obviously be professional, बट फिर आप कंपनी को खुद समझ जाओगे यार इस कंपनी में तो स्लैंग्स यूज कर सकते हैं। बट इंटरव्यू के टाइम पे चाहे वो कैसी भी कंपनी हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टार्टअप्स और द वेरी लो वन,
गुड कंपनी और एमएनसीज, वहां पे आपका इंटरव्यू टफ होता ही होता है, चाहे वो कंपनी बैकएंड में वो किस तरह के भी चीजें करती हो, या फिर उनकी टोन्स हो जो अपने फ्रेंड्स में एम्प्लॉयज में यूज करते हो, मे बी एचआर टू एचआर भी करते होंगे वो, बट ऑन दैट टाइम आपको फॉर्मल रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये अगर आप कर लो ना, लाइक ये तीन चीजें ये बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया। हाँ, ये है सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये आप मान सकते हो, या तो आपका ये सेकेंड राउंड में आता है या फिर ये थर्ड राउंड के लिए होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये तो आपका फर्स्ट मान लो। एचआर इंटरव्यू नॉर्म्स प्रोटोकॉल सी आपको कब यूज करने हैं? फर्स्ट राउंड में भी, सेकेंड राउंड में भी, थर्ड राउंड में भी, तीनों राउंड में आपको यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, मे बी आपका राउंड टेलीफोनिक हो सकता है, आपका राउंड वर्चुअल हो सकता है, आपका ऑफलाइन हो सकता है ना, इन फ्रंट पर्सन, पर्सन में हो सकता है इंटरव्यू, पर्सन में। हाँ, पर्सन में ये चीज ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, बट ये चीज आपका वर्चुअल में भी करती है, ज्यादा ज्यादा तो नहीं करती बट हाँ करती है। ड्रेस कोड अगर है तो एटलीस्ट वियर अ शर्ट, नीचे से आपने क्या पहना है क्या नहीं, है ना। इफ यू आर शेकिंग योर लेग्स क्रॉस है, वो तो देखेगा ही नहीं ना उसमें। तो वर्चुअल में थोड़ा आपको इसमें रिलीफ मिल जाएगा, बट हाँ अगर ऑफलाइन है तो हाँ प्रॉपर आपको यू you नो काफी टाइट होके रहना पड़ेगा वहां पे, काफी ज्यादा। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया। टेक्निकल स्किल्स की अगर हम बात करें तो मास्टरी एंड एक्सपर्टीज इन क्रिश्चियन टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स रिलेवेंट टू द फील्ड। ये देखो, इसमें मैं ज्यादा कमेंट करूंगी नहीं क्योंकि ये टोटली आपके ऊपर है। यहाँ पर ये भी सेशन में डेटा एनालिस्ट के बच्चे होंगे, फुल स्टैक के होंगे, फ्रंट एंड बैक एंड वट एवर, क्लाउड के होंगे, आपके एसएपी या फिर मेनी टेक्नोलॉजीज आते हैं, राइट। क्योंकि मैंने ये ऑलमोस्ट सारे ग्रुप्स में सेशन का भेजा था, तो इस पे तो मैं कुछ कमेंट कर नहीं पाऊंगी, बस इतना बोल पाऊंगी जो भी आप टूल्स यूज करते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही कि आपको कितना आता है वो टूल। मैं बस टूल की बात कर रही हूँ कि उस टूल में जो आपने अपने सीवी में मेंशन कर रखे हैं उसका यूज, ठीक है, मास्टरी और एक्सपर्टीज नहीं आ सकती। इफ यू आर नॉट एक्सपीरियंस ना, अगर आप फ्रेशर हो, मास्टरी और एक्सपर्टीज आपको नहीं आ सकती। बट हाँ, जो भी आप टूल्स मेंशन कर रहे हो, वट एवर, एक्सेल हो गया आपका, पावर बीआई हो गया, कुछ भी हो गया, फ्रंट एंड में आपका HTML CSS, जो भी आप मेंशन कर रहे हो, जस्ट नो हाउ टू यूज दैट टूल्स। बस इतना पता रखो, आप कैसे यूज कर रहे हो, कैसे क्या करते हो, ये आपका अलग पार्ट हो जाता है। बट उस टाइम पे जब आपसे आपका इंटरव्यू हो रहा हो तो आपको सारे टूल्स पता हो कैसे यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं, बस दैट्स इट। अगर आप फ्रेशर हो तो, एक्सपीरियंस में तो ऑब्वियसली आपसे फिर बहुत सारी चीजें करवाई जाती है कि ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ, बट हाँ फ्रेशर में इतना नहीं होता है, नहीं करते कंपनीज। Second is strong problem solving abilities and impressive logical reasoning skills। हाँ, ये आप अडेप्ट नहीं कर सकते हो, ये आई गेस वी कैन से ये स्किल होता है, ये बाय बर्थ ही आ जाता है कि हमारी रीजनिंग कितनी स्ट्रांग है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी स्ट्रांग है। बट आप इसको चेंज कर सकते हो बाय डूइंग मेनी क्वेश्चनर्स और मेनी क्वेश्चंस, एटलीस्ट 5 a day, 5 क्वेश्चंस, 5 केस स्टडीज अ डे। आपकी लॉजिकल रीजनिंग इससे खुद बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा फिर आकर ना ज्यादा नहीं है। अगर मैं किसी एक टेक्नोलॉजी को लेके चलूं, लेट सपोज मैं पावर बीआई को लेके चलूं या बिजनेस एनालिस्ट या एससीपी को, किसी भी मॉड्यूल में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, घुमा फिर आके आपके मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चंस ही है। उन 10 से 15 को आप इतनी अच्छी तरह रिवाइज कर लो ना कि एटलीस्ट जब क्वेश्चन आए, भले आपको 100% आंसर ना आता हो, बट एटलीस्ट आप 50, 60 और 70% तो आंसर कर पाओ। आप वहां पे पॉज ना लो, आपको नो ना कहना पड़े वहां पर। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि 5 क्वेश्चंस पूछे एचआर ने और एक का अगर हम आंसर नहीं दे पाए ना तो हमें खुद पे डाउट होने लगता है कि यार मैंने एक का नहीं दिया, भले वो हो जाएगा ज्वाइन, बट वो फिर एक ना हमें बहुत माइंड में घूमता रहता है, और तब तक घूमता है जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता। तो वो चीज ना करके एटलीस्ट से समथिंग, होता है ना जैसे हमें स्कूल से मिलते थे क्वेश्चन, एटलीस्ट अटेम्प्ट दैट। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम अटेम्प्ट करते थे, तो वही चीज है। बट इंटरव्यू में आप अटेम्प्ट तभी करो जब एटलीस्ट आपको 40 to 50% आंसर आता हो। नहीं आता
तो आप प्लीज वहीं पे आप नो बोल दो, क्योंकि आप जितना ट्राई करोगे उस आंसर को अपने माइंड में थॉट्स में घुमा फिरा कर देने का कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स मिल जाए, तो नहीं, वहां मार्क्स नहीं मिल सकते। उसको वो चीज और इरिटेटिंग लगेगी और वो आई गेस वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछेगी, फिर वो वहीं पे रिजेक्ट कर सकती है। तो 40-50% अगर आंसर आपको आता है इस क्वेश्चन का, जस्ट से इट विद द कॉन्फिडेंस। नहीं आता क्योंकि हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन सुनते हैं कि हमें ये आता है कि नहीं आता, से नो विद इन 5 to 6 seconds। ठीक है। Got it. ओनली Got Survi it. गॉट इट, Yes, ma'am. सागर ऑल्सो, Yes, शिव। ma'am. I'm understood. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Understand, ma'am. ओके देन, मैं बोल दिया। ओके अब आते हैं। यस, ओके हम आते हैं सॉफ्ट स्किल्स पे। सॉफ्ट स्किल्स जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि लिसनिंग स्किल्स हो गया, आपके ग्रूमिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब आपका सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आता है। बट आपको ये कैसे दिखाना होता है कि मुझे में सॉफ्ट स्किल्स हैं, आप कैसे दिखाओगे? आप ये दिखाओगे कि आपका जो भी इन्वायरमेंट है, लेट्स सी एक्सेप्शनेबल टीम कोलैबोरेशन स्किल्स, भले ही आपके अंदर ना हो, आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यू नीड दैट जॉब, यू वांट दैट जॉब। हम सबको पता है जो इंटरव्यूज होते हैं जस्ट द फॉर्मेलिटी, हमें बस वो पास करना पड़ता है। तो पास दैट इंटरव्यू लाइक दे वांट यू टू डू, है ना। अगर वो चाहते हैं कि आपको इस तरह ये सब स्टेयर्स क्रॉस करके इस जगह पे आना है, जस्ट डू दैट बिकॉज यू नीड दैट जॉब, है ना। यू विल ऑल्सो गेट पेड फॉर दैट। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ उनके लिए जा रहे हो वहां पे स्टेयर्स पे चढ़ के। अगर वो चाह रहे हैं कि इसके अंदर कोलैबोरेशन स्किल्स हो, इसके अंदर अडेप्टेबिलिटी हो, कि वो इन्वायरमेंट जो भी चेंजिंग इन्वायरमेंट्स होते हैं, चेंजिंग इन्वायरमेंट्स मतलब हमने आज इसको इस जगह पे डाला इस इन्वायरमेंट में तब भी ये काम कर रहा है, प्रेशर के साथ डाला तब भी काम कर रहा है। तो आप वो चीज अपनी दिखाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, भले ही बाद मत करना, क्योंकि बाद में इतना फर्क नहीं पड़ता। कोई भी कंपनी आपको हायर करने के बाद डोमिनेट करने में सोचती है, सच में सोचती है, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो, अनटिल अनलेस वो बहुत छोटी या फिर स्टार्टअप कंपनीज ना हो, क्योंकि वो नहीं सोचती हैं बिल्कुल भी। बट हाँ, आप उस कंपनीज में जाओगे क्यों, और उन कंपनीज के लिए नॉर्म्स बनते भी नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि नॉर्म्स बनाते होंगे अपने लिए, पर हाँ एक गुड कंपनी में ये सारे नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। कोलैबोरेशन स्किल्स दिखाओ, अडेप्टेबिलिटी दिखाओ कि हाँ आप मुझे अगर इस जगह पे डालोगे इस डिपार्टमेंट में तो भी मैं काम कर लूंगा, अगर उस डिपार्टमेंट में डालोगे तो भी मैं काम कर लूंगा। अपनी सारी जो गुड चीजें हैं जो जिससे आप उसकी गुड बुक्स में जा सकते हो, वो सब आप बोल दो। एंड एक रिमार्केबल लीडरशिप पोटेंशियल आप वहां पे छोड़ कर जाओ कि हाँ आई एम हैविंग दैट लीडरशिप पोटेंशियल, कि मैं टीम वर्क एक टीम के अंदर काम कर सकता हूँ, मैं उनको लीड कर सकता हूँ, मैं उनको ये कर सकता हूँ। अगर आप फ्रेशर हो तब भी ये सब बोलो। जॉब तो आपको फ्रेशर की ही मिलेगी, नो डाउट, बट हाँ वो एक ना स्कोप लेके चलेंगे कि हाँ इसको एज मैं फ्रेशर तो हायर कर रहा हूँ, आफ्टर 6 months ना मैं इसको ये पोजीशन दे दूंगा। क्योंकि वो ट्राई करते हैं कि इंटरनली जितनी हायरिंग हो पाए ना उतना उनके लिए भी इजी रहता है। इसमें किसी को डाउट? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके हम आते हैं अपना थर्ड पॉइंट, एचआर इवैल्यूएशन। वो कैसे करती है? वो करती है वेल अलाइंड पर्सनालिटी, वेल अलाइंड, कि हाँ यार मुझे ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए था जो जो मैच्योर हो, जो कॉन्फिडेंट हो, जो इवन अच्छा बोले, अडेप्टेबिलिटी हो उसके अंदर, लीडरशिप स्किल्स भी हो, ठीक है, जो उसके कंपनीज कल्चर में परफेक्टली फिट बैठ रहा हो। वो इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो सकते हैं कि हाँ यार दिस कैंडिडेट is perfectly fit for this the requirement which she is looking for। वो उसको दिखाना है। अगर वो चाहती है कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए तो आप ऐसे बंदे बन जाओ। जेडी में हमें हमेशा लिखा होता है कि जेडी में हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए, तो आप अपनी सीवी और खुद को वैसे ही बना लो, है ना, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन कितना ज्यादा है। 100 thousands of profiles are there in the bucket of HR for just one profile, one position। और वो 2000 बच्चों का इंटरव्यू तो नहीं ले सकती ऑब्वियसली, वो फिल्ट्रेशन करती है बाय द बाय द ATS सीवीज का, कि हाँ जो जो स्किल्स उसके जेडी में है, जो जो उसने पोस्ट किए थे उन कैंडिडेट्स की सीवी में है या नहीं। ट्राई करो, सारे डाल दो आप। देखो 100% तो आपका जेडी मैच कभी नहीं कर सकता, किसी का भी नहीं कर सकता,
जेडी जस्ट फॉर द सेक ऑफ ताकि सामने कैंडिडेट्स को पता चले कि हम क्या चाह रहे हैं, कि हमें क्या चाहिए उस कैंडिडेट में, आपके पास सब बन जाओ आप, कोई इशू नहीं, आई डोंट थिंक सो। 70-80% मैच कर रहा है, वेरी गुड। अगर आपको लग रहा है कि यार उसमें ना एक्सेल के साथ रिएक्ट मांग लिया, और रिएक्ट एक बहुत ही बड़ी लैंग्वेज है, आपके पास 5 to 6 डेज होते हैं, ठीक है, आपका 70-80% जेडी मैच कर रहा है, आपको लग रहा है कि यार अगर मैंने रिएक्ट नहीं लिखा तो शायद मेरा HCV शॉर्टलिस्ट ही ना हो, एक हफ्ता है, थोड़ा बहुत पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रही पूरा तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, पूरा पढ़ने में तो आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लो, एक बार फ्रेश हो, रिएक्ट है क्या और कैसे कैसे वर्क करता है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, इतने कॉन्फिडेंट इनफ हो, जस्ट मेंशन द रिएक्ट इन योर CV, ताकि वो शॉर्ट लिस्ट हो जाए, ठीक है। बट अगर आपको लगता है नहीं यार ये हो ही नहीं पाएगा ये चीज, तो वो जॉब फिर आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि यू कांट चेंज योर सेल्फ दैट मच ना, कि बिल्कुल आप अपना डोमेन चेंज कर लो और ये सब चेंज कर लो, ठीक है। तो वो चीज मत करना, बट हाँ ट्राई करो कि ये सब तो कर पाओ चेंजेस थोड़े CVs में अकॉर्डिंग टू द JD ऑफ ईच कंपनी। यहाँ तक किसी को डाउट दोनों पॉइंट्स में? No, ma'am. नॉर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स और सिलेक्शन क्राइटेरिया में हम लास्ट आता है चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। ये आपके क्या क्या की फैक्टर्स होते हैं जो सिलेक्शन क्राइटेरिया पे नो सॉरी हाँ सिलेक्शन क्राइटेरियाज पे जो चांसेस आपके बढ़ा देते हैं, ठीक है। सबसे पहला It is, यस it is norms. ये सोनिया, What is norms? norms you can say the rules and the regulations, Okay, okay, got it. okay, yes, yeah. First, a crystal clear understanding of the role specific requirements. आपको पता हो आप किस रोल के लिए यहाँ पर आए, ये आपको क्लैरिटी पहले से हो, ठीक है। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HR आपसे यही पूछते हैं, व्हाई यू वांट टू डू दिस जॉब, है ना। ओके, व्हाट आई हैव मेंशन्ड इन द JD, आई हैव मेंशन्ड दिस, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, बट अगर जॉब पोस्ट होती है विदाउट गोइंग विद द JD, दे जस्ट अप्लाई फॉर इट, they doesn't make any change in their CVs, they doesn't make any changes in their in the kind of in the projects, in the skills part, nothing, वो just apply कर देते हैं and they still expect to get shortlisted because वो मेरे हाथ में नहीं होता, मैं सबकी CVs आगे कैरी फॉरवर्ड कर देती हूँ to the company, but still I have to listen कि आपने कैसी CVs भेज दी है, इसमें तो वो मेंशन ही नहीं है जो हमें चाहिए था। तो मैं अब सबका CV तो वो नहीं कर पाऊंगी ना चेंज बैठकर कि हाँ मुझे ये CVs, क्योंकि मुझे ऑन द विद इन हाफ एन आवर 1 आवर मुझे CVs भेजने होते हैं कंपनीज को। तो आपको पता हो कि आप किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। लेट सपोज मैंने 3 जॉब्स एक साथ डाल दी, अब पास टाइम होता है, यू आर हैविंग इनफ टाइम, 10 मिनट्स दो ईच JD को कि हाँ इसने ये मांगा है। अगर आपको लगता है कि इस रिक्वायरमेंट में मुझे CV में थोड़ा ये चेंज करके भेजना पड़ेगा, डू द चेंजेस, इट विल टेक जस्ट 2 to 3 मिनट्स और फिर अपलोड कर दो। आप नेक्स्ट JD पे जाओ कि नहीं यार ये तो मेरे लिए है ही नहीं, बिल्कुल इसके लिए अप्लाई ही नहीं करता हूँ। थर्ड पे जाओ, लगता है कि यार ये तो पुराने वाले CV से काम चल जाएगा, जस्ट अपलोड दैट, ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, डेडिकेशन यू हैव टू शो, है ना, नॉट मी, नॉट द कंपनी। तो एक क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेके चलो आप लोग कि आप किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो और उस रोल में मांगा क्या है, क्या आप वो कैंडिडेट बन सकते हो या फिर हो जो उसे चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड नोटेबल अचीवमेंट्स। ये प्लीज अपने आप CVs में डाल दो, रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है इंटर्नशिप डाल दो। आपका जो इररेलेवेंट एक्सपीरियंस है, इररेलेवेंट इन द सेंस कि सेम डोमेन में नहीं है, यू आर अप्लाइंग फॉर अ as a data analyst and your prior experience is into sales, don't show that much the expertise or the section of the previous experience, इतना नहीं दिखाओ। ये मैं ये भी नहीं बोलूंगी बिल्कुल हटा दो, हटा दोगे तो फिर तो गैप लगेगा ना कंपनी को कि हाँ ग्रेजुएशन इतने में हो गया, तब उसके बाद से क्या कर रही थी या क्या कर रहा था, वो दिखाओ। बट ज्यादा क्या दिखाओगे, द रेलिवेंट स्किल्स एंड द प्रोजेक्ट्स एंड द इंटर्नशिप इफ यू हैव डन, वो आप ज्यादा फोकस करवाओ कंपनी से। आप नीचे एक सेक्शन बना दो वर्क एक्सपीरियंस का, दैट या आई हैव डन इन दिस कंपनी एज अ दिस प्रोफाइल, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज 2 से 3 पॉइंट में बुलेट पॉइंट्स में मेंशन कर दो, ताकि उसको ये ना लगे कि पीछे कुछ काम ही नहीं कर रखा। गैप वाले बंदे को वैसे ही वो शॉर्टलिस्ट नहीं करते इजीली। बट वहीं पे अगर आप फ्रेशर
काउंट होगे तो ऊपर टेक्निकल स्किल ज्यादा डाल दो आप। मैंने फॉर्मेटिंग सेशन तो लिया था, बट लेट मी शो यू वन थिंग। ओके, विजिबल टू ऑल। ओके, लेट सपोज मैं Yes, it is. एससीपी के कुछ सीरीज ओपन करती हूँ, ठीक है? No, ma'am. तो मैंने, Screen not visible, ma'am. इज इट नॉट विजिबल टू ऑल? I can No, see. ma'am. Yes, ma'am. It is visible. Visible level. Yeah, visible, Visible. visible. Visible, ma'am. It's Visible, visible layer. Please check with your settings or not the settings, with your network. ओके, ये कुछ सैंपल सीवीज है, लेकिन मेरे पास हर टेक्नोलॉजीज के ना 2 फ्रेशर 2 एक्सपीरियंस के सीवीज होते हैं और ये बेस्ट होते हैं। ये मैंने फ्रेशर की एक प्रोफाइल खोली है, ठीक है? और ये मुझे इसलिए अच्छा लगा ये प्रोफाइल, क्योंकि देखो इसमें जो सीवीज डलती है ना, आई एम हैविंग हंड्रेड्स ऑफ सीवीज, बट मैं सिर्फ 2 ही डालती हूँ, फ्रेशर के 2 और 2 एक्सपीरियंस के, बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग करने के बाद। इस कैंडिडेट ने इसको एक्सपीरियंस है काफी सारी कंपनीज का, आई गेस 4 कंपनीज का, बट इनमें से रेलिवेंट कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है, बिकॉज ये किसका कैंडिडेट है? एसएपी फीको का, ठीक है? इसने एसएपी सॉफ्टवेयर यहाँ से सीखा है। स्टिल ये अपना ये तो है नहीं कि ये एक्सपीरियंस ही बंद कर देगा दिखाना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको दिखाना पड़ेगा। बट इसने किस तरह दिखा रखा है? कंपनी का नाम लिखा, डेजिग्नेशन, टेन्योर, कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन, 1 लाइन में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करता है, टेन्योर, अगेन अगेन। कंपनी इस पे फोकस ही नहीं करेगी, बिकॉज ये है ही इतना छोटा सेक्शन, ये छोटा सा सेक्शन इसने बस ले लिया है ना, ताकि इसको दिखाना पड़े कि हाँ मैं वर्किंग रह चुका हूँ, मैं कोई गैप वाला कैंडिडेट नहीं हूँ। फिर इसने इतना ज्यादा बड़ा सेक्शन लिया है, किस लिए? टू शो हिज स्किल्स इन एसएपी, द रेलेवेंट स्किल्स, गेटिंग इट? तो इसने ये ज्यादा सेक्शन लिया है ताकि अपनी एक्सपर्टीज शो कर पाए, कंपनी इस चीज पे फोकस करे, ना कि इसके वर्क एक्सपीरियंस पे, ठीक है? ये आप दिखाओ। फिर उसने टेक्निकल स्किल्स अलग, एसएपी फीको की स्किल्स अलग, टेक्निकल स्किल्स जो भी उसको और कुछ एक्स्ट्रा आता हो वो उसने अलग, एडुकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनल डिटेल्स, दैट इज नॉट मैंडेटरी नाउअडेज, बट या ये कुछ मना भी नहीं करेंगे कोई लोग अगर, क्योंकि उनका फोकस इस पे रहेगा, सिर्फ टेक्निकल स्किल्स और एससीपी फीको स्किल्स। ये फ्रेशर ही काउंट होगा, बट फ्रेशर के हिसाब से भी सीवी इतना ज्यादा बेटर है कि जो और जो फ्रेशर्स हैं वो इससे compete नहीं कर पाएंगे, गेटिंग इट? Yes, Yes. ma'am. या Yes. तो प्लीज ट्राई करो, अगर आपका एक्सपीरियंस किसी और में है तो ट्राई करो, जितना छोटा रख सको ना उतना रखो, आपको छुपाना भी नहीं है, ठीक है? बट जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जो उनको रेलिवेंट चाहिए, वो सब आप इतना बड़ा एटलीस्ट पेज लो, ताकि उसका फोकस इस पे जाए कि हाँ यार इसमें बहुत सारे स्किल्स आते हैं। वो क्यों इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे? आप बताओ, एज अ फ्रेशर इसको क्यों सिलेक्ट नहीं करेंगे? वो बिल्कुल करेंगे इसे, ठीक है? तो कहाँ थी मैं? हाँ, या relevant experience or notable achievements. Then an enthusiastic attitude coupled with a strong willingness to learn. Learning आपको दिखानी पड़ेगी, Excuse चाहे me, ma'am. आप, yes dear, एक क्वेश्चन है. yes सागर, As you mentioned that अगर you have experience in different domain, हाँ so हाँ, mention it in a crisp way. But right, can we do it in a way that in that job description itself, can we tweak or add certain points which matches with the JD? yes you can bold that dear, Okay. Okay. yes. सी अगर आपको लगता है ना कि आपकी जो लास्ट कंपनी है उसमें आपने थोड़ा बहुत काम ऐसा कर रखा है जो आपकी रिलेवेंसी बढ़ा सकता है, लेट सपोज यू आर गोइंग फॉर अ एमआईएस प्रोफाइल, एक्सेल प्रोफाइल, और आपकी लास्ट कंपनी में ज्यादा तो काम नहीं, बट आपने थोड़ा बहुत एक्सेल पे कर रखा है, जस्ट मेक दैट बिट अ लॉन्ग वन, थोड़ा सा 3 से 4 पॉइंट उसमें हाईलाइट कर दो। जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन गगन, ठीक है, उसको आप थोड़ा लॉन्ग कर दो, एक्सेल वाली क्वालिटीज, एक्सेल वाली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा दिखा के, ताकि वो काउंट हो जाए, आप फ्रेशर का टैग नहीं लगेगा ना आप पे फिर, Okay. ठीक है? हाँ, ये चीज आप कर सकते हो। ठीक. गगन, जेडी मीन्स जॉब डिस्क्रिप्शन, जो कंपनी आपको देती है कि हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए,
PDFs में या फिर वर्ड फाइल में? चलो हाँ, तो आपको एंथुजियास्टिक एटीट्यूड और विलिंगनेस दिखानी पड़ती है, वेदर आप फ्रेशर हो एक्सपीरियंस हो, आपको लर्निंग अपना एक फैक्टर दिखाना ही पड़ता है कि आई एम हियर टू लर्न. You can't say I'm just here to, that I'm not having job, I was unemployed. No, these are very, informal things. ये सबको पता होता है माइंड में कि हम इसलिए जॉब कर रहे हैं, है ना? बट आपको लर्निंग वाला ही पॉइंट दिखाना पड़ता है, आपको एंथुजियास्टिक वाला एटीट्यूड दिखाना पड़ता है, दैट यू आर हैविंग वेरी एनर्जी एंड यू वांट टू वर्क फॉर दिस कंपनी, यू विल गिव द होल हार्ट, होल माइंड, एवरीथिंग दिखाओ, आपको दिखाना पड़ेगा इंटरव्यू में. तभी वो कंपनियां सोचेंगी कि हाँ यार, इस कैंडिडेट में कुछ बात है, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड विद हिम और हर. राइट राइट, कुछ डाउट, कुछ भी? No, No, madam. ma'am. चल ओके, अब आते हैं हम लास्ट Hello. अपना कॉमन Hello, रेड ma'am. फ्लैग्स. यस डियर. मैम एक्चुअली एक क्वेश्चन था कि जैसे मेरा पास्ट एक्सपीरियंस किसी दूसरे डोमेन में है और हाँ. अभी मैं जो डेटा साइंस कर रहा हूँ ट्रोमा कैंपस से, तो उसको हाँ. कैसे शो अप करना होगा, क्योंकि कंपनी तो मुझे फ्रेशर ही टैकल करेगी, पास्ट एक्सपीरियंस को तो हाँ. कंसीडर करेगी नहीं. नहीं, तो फिर रिज्यूम में कैसे मेंशन करना होगा कि जैसे अभी मैंने दिखाया डियर, ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस छोटा सा लिखो ना अब, कि क्या क्या मैंने काम किया, ओके. बहुत छोटा. जो अपने यस मैम. डेटा साइंस के स्किल्स आप कर रहे हो, वो सारा इतना बड़ा दिखा दो, आप उसको तोड़ दो. आप एक्सेल सीख रहे हो, पावर बीआई, सिर्फ एक्सेल पावर बीआई मत लिखो, वी लुकअप, एच लुकअप, पावर क्वेरी, ये सब आप तोड़ दो, उसको ज्यादा से ज्यादा दिखाओ. ओके मैम. ओके ठीक है, मैम. वैसे आप ओके दिखाओ, मैम. इस कि कंपनी का फोकस इस पे जाए, ना कि इस पे. ओके. ठीक है, चलो, ठीक है. थैंक यू. वेलकम. कॉमन रेड फ्लैग्स. रेड फ्लैग्स पता है ना सबको, रेड फ्लैग्स जो नो टू से नो, नॉट से नो, बट जो रेड फ्लैग्स इन द सेंस कि जहाँ पे स्टॉपेज एक लग जाती है, जहाँ पे कंपनी कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करती या किसी को नहीं करना चाहिए. तो अपेरेंट लैक ऑफ प्रिपरेशन और नॉलेज रिगार्डिंग द कंपनी, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी. यू शुड नो फॉर विच कंपनी यू आर अप्लाइंग फॉर, द रोल, एक क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ये रोल है और ये कंपनी है, कंपनी किस चीज में डील करती है, कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है, क्या वर्क है उसका, प्रोडक्ट बेस्ड है, सर्विस बेस्ड है, क्या है, पढ़ो उसके बारे में. इतना ज्यादा टाइम मत दो, बट एटलीस्ट हाफ एन आवर दो कि कौन कौन उसके डायरेक्टर्स है, कहाँ कहाँ इसकी ब्रांचेस है. ये सारी चीजें इंप्रेस करती है एचआर को या फिर सीईओ को, अगर वो भी आपका इंटरव्यू, क्योंकि वो भी एक राउंड होता है, सीईओ राउंड, वो अगर हो रहा है तो वो इंप्रेस हो जाए कि हाँ, दिस गाय नोज अबाउट अ कंपनी. यू कांट से नो नो, आई हैव नेवर हर्ड क्रोमा कैंपस, आई हैव नेवर हर्ड XYZ कंपनी. वहीं पे वो रेड फ्लैग है. ठीक है. द सेकेंड इज इनएक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, इनफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी, इंग्लिश हो हिंदी हो डजेंट मैटर, ये आपको बढ़ानी पड़ेगी. अनप्रोफेशनल बिहेवियर भी बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, यू कांट बिहेव लाइक अ चाइल्ड इन एनी ऑफिस, इन एनी इंटरव्यू. ठीक है, आपको प्रोफेशनली मैच्योर बनकर पेशेंस रखना पड़ेगा काफी. ठीक है, वो आपको कुछ कह रहा है, जस्ट इग्नोर दैट, जस्ट गो टू द HR, कंप्लेन विद देम. ठीक है, दैट ही हैज डन विद दिस थिंग विद मी और शी इज डन दिस थिंग विद मी. आप वहां पर चिल्लाना, अब्यूजिंग, ये सब यूज नहीं कर सकते, है ना. if someone is asking for a pen, just give it to it. If you're not having it, just say no with a very pleasant way. अनप्रोफेशनल बिहेवियर्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं इंटरव्यू में. हो अगर HR कह रही है, जस्ट सिट देयर, और मे बी उसने रूडली बोला हो, ठीक है, यू कांट रिप्लाई दैट, यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस, आप नहीं बोल सकते हो उससे. ठीक है, क्योंकि उसका वो थोड़ा काइंड ऑफ अ टेंट्रम यू कैन से होते हैं. ठीक है, क्योंकि शी इज इन दैट पोजीशन कि वो आपको अथॉरिटी, उसके पास अथॉरिटी होती है कि शी कैन ऑर्डर यू, यहाँ सिट देयर, स्टैंड अप, दिस. बट हाँ, इतना भी नहीं कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट हो जाए. डिसरिस्पेक्ट अगर वहां पर आपको बिहेव हो रहा है, देन यू कैन यूज अनप्रोफेशनल, यूज वट एवर यू वॉन्ट टू, बट वैसा होता नहीं है इन जनरल. रूड होगी कंपनी, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछेगी. आपका ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ये बोल दोगे, नहीं आप ऐसे नहीं पूछ सकते.
आप लाउड नहीं हो सकते बिल्कुल भी। तो उससे आप कहते नहीं कि बस गुस्से को अपने मन में रखो, भले ही इंटरव्यू के बाद बाहर आके, ऑफिस के बाहर आके चिल्लाओ जितना आप चिल्ला सकते हो, बट उस टाइम आपको साइलेंस, प्लीजेंट, पोलाइट, ये सब रहना होगा। ठीक है, इस तीनों पॉइंट्स में किसी को कुछ डाउट? आई डोंट No, थिंक सो, मैंने कुछ नया बताया है, ये सब हमें पता होता है, बट आपको चीजें ऐसी हैं जो आपको समझनी चाहिए कि ये सच में इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत मेजर रीजन है टू गेट फॉर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड। टेक्निकल स्किल्स बहुत ही लास्ट में आता है आपका। टेक्निकल स्किल्स की वजह से बहुत रेयर ही चांसेस होते हैं कि बंदा सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि फ्रेशर में इतने टेक्निकल स्किल्स नहीं ही देखे जाते, कंपनी नहीं देखती कभी भी। कंपनी बंदा लर्निंग है, विलिंगनेस है, डेडिकेशन है, वो सिलेक्ट कर लेती है उसी टाइम। ठीक है, अब बताओ इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ भी? I'll share this PDF also. ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में, या आप एक बार अगर आप किसी को गो थ्रू करना, वो कर सकता है इजीली। इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार अगर आप गो थ्रू कर लो इसको, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब हम आते हैं टिप्स पे। कुछ आई गेस 10 टिप्स होंगी, मैंने 10 ही बनाई थी आई गेस। हाँ 10 टिप्स हैं, ठीक है, ये आप फॉलो कर लो। सिंपल, नो नॉट नो, नोज द कंपनी, ठीक है, रिसर्च द कंपनीज वैल्यूज, क्या कल्चर है, और इसके बारे में रीसेंट न्यूज। ठीक है, इसको अपने आंसर्स के साथ ना एक बना लो, मैच कर लो, एक गुड फिट हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज एक क्वेश्चन आया कंपनी के साइड से, व्हाट इज योर ड्रीम कंपनी। आप उस कंपनी का नाम मत लो। लेट सपोज आप क्रोमा कैंपस के लिए इंटरव्यू देने आए हो, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि व्हाई यू वांट टू वर्क हियर, व्हाट इज योर ड्रीम कंपनी। आपका आंसर क्या बनता है? आप ये बोलो, द कंपनी हु वैल्यूज द कल्चर, जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो, जहाँ पे लर्निंग पार्ट हो, लाइक क्रोमा कैंपस। You haven't take the name of Chroma Campus in your dream company, but like Chroma Campus, वो बहुत impressive हो जाता है। ठीक है, आप बटन नहीं कर रहे हो, आप आप कोई चीजीनेस नहीं दिखा रहे हो, जस्ट यू आर showing some I can say, I'm not getting that word, I'm not getting that word, but आप प्लीज समझ जाओ कि आप बस उसे इम्प्रेस कर रहे हो, उस कंपनी की एचआर को, उस कंपनी को, कि या यू नो दैट कंपनी। आप देख लो इस कंपनी में वर्क करना, और आपके लिए कंपनी सब कुछ है। आप अगर ये चीज दिखा रहे हो उसका एचआर को, तो वो काफी प्रेस हो जाती है। आई डोंट थिंक सो कि वो उसके माइंड में कुछ भी आएगा क्वेश्चन कि यार इतना अच्छा बोल रहा है हमारी कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी के बारे में जब तक अच्छा बोलोगे आप उस कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय रहोगे। जिस दिन आपने कंपनी के बारे में कुछ उल्टा बोल दिया किसी भी एम्प्लॉय से, किसी से भी, तो वहां फिर आप रेड फ्लैग बनते जाते हो। इसमें किसी को डाउट कुछ? Just No, make ma'am. them No, happy. ma'am. If you want to have that position, make them happy. Make the HR happy by by complimenting the the family's cultures and the values. Understand the role, जैसे मैंने ऊपर बताया था. Be clear on the job description and how your skills and experience match the requirements. ये आप clarity अपने mind में ले आओ, अपने CV में ले आओ. Practice common HR questions. हाँ ये आप कर लो. मेरे पास एक क्वेश्चन भी है I guess. Let me show you. या अगर आपको ये भी चाहिए तो I'll share this कि कैसे कैसे क्वेश्चंस HR पूछ सकती है. ओके, कैन यू टेल मी बिट अबाउट बैकग्राउंड, तो आपका आंसर कैसे हो सकता है. व्हाई डिड यू चूज दिस करियर पाथ, वो आप अपना आंसर दे सकते हो. ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल अचीवमेंट क्या है, तो ये आप अपने आंसर्स में कस्टमाइज बना सकते हो. हाउ डू यू हैंडल टाइट डेडलाइंस, और what are the strategies do you use to stay motivated at work. अब ये क्वेश्चंस वैसे तो ज्यादा कॉमन नहीं है, बट हाँ पूछ सकती है, तो आप प्रिपेयर कर लो. ठीक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, why do you want to join our company, what are your strengths and weaknesses, and where do you see yourself in 5 years. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है जो ऑलमोस्ट हर एचआर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. इनके आंसर्स इतने परफेक्टली रेडी कर लो ना कि उसका 1% भी चांस ना हो आपको नो बोलने का. बी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन, बातों को घुमाना बंद कर देना वहीं पे बिल्कुल भी. जो पूछे जस्ट बी प्रिसाइज
and short. आप एक HR डिटेक्ट कर सकता है स्क्रिप्टेड आंसर्स, ये तो होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आप जैसों का ऑलमोस्ट 10 से 15 इंटरव्यू ले रही है डेली, है ना, तो वो डिटेक्ट कर लेती है, ओके ही इज लाइंग, ही इज मेकिंग अप द सेंटेंस इन हिज माइंड, वो डिटेक्ट हो जाता है। ऑब्वियसली वो आई गेस वो ह्यूमन माइंड का एक है ना, वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं, बट ये HR कुछ ज्यादा कर लेते हैं क्योंकि वो उन्होंने वो चीज सीख रखी है। तो स्क्रिप्टेड आंसर्स ट्राई करना मत करना, फेक स्माइल मत करना, आंसर दे रहे हो बी क्लियर, बी हैव अ बिट स्माइल, बट फेक स्माइल नहीं कभी, वो भी पकड़ी जाती है। बी ऑथेंटिक while remaining professional. Demonstrate the cultural fit, show that your personality and work style align with the company culture. ये आप दिखा दो बस, इसमें कहीं नहीं लिखा कि आपको वैसा बनना है, शो दिखा दो, जैसे हम शो ऑफ करते हैं ना कुछ अटेंशन सीकिंग के लिए, तो आप यहाँ पे शो करो जॉब लेने के लिए। हाईलाइट योर सॉफ्ट स्किल्स, ये आपको करना चाहिए। मोर देन द टेक्निकल स्किल्स यू हैव टू हाईलाइट द सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या 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 होती है आपकी? टीम वर्क, कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब ट्रेट्स होते हैं जो HR देखती है आप लोगों में, ठीक है। आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस, स्मार्ट क्वेश्चंस लाइक आस्क द कंपनीज वैल्यूज, मतलब आपको डेडिकेशन दिखानी है अपनी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है मेरे लिए यहाँ पे, टीम डायनेमिक्स क्या क्या है। आप वहाँ पे अवॉइड करो कि सैलरी क्या होगी, क्या क्या इंसेंटिव्स, क्या क्या बेनिफिट्स, छुट्टी कितनी ना, ये सब ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा जब उस कंपनी को आप ज्वाइन करोगे। बट उस टाइम पे आप सिर्फ कंपनी पे फोकस करो कि यू आर हेयर टू वर्क, नॉट जस्ट फॉर द सैलरी एंड पर्क्स। ओके, mind your body language, maintain the eye contact, smile naturally, avoid crossing your arms or appearing distracted. आप कुछ भी इस तरीके से नहीं बैठ सकते कि जिससे डिस्ट्रैक्शन उस environment में हो। Be positive, avoid speaking negatively about previous employers or experiences. कभी भी नहीं, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आप किसी कंपनी से निकाले गए हो, अपनी लास्ट कंपनी से, या फिर आपने छोड़ी है, आप ट्राई करो बिल्कुल भी नेगेटिव मत बोलो। नेगेटिव इन द सेंस कि उस कंपनी का डायरेक्टर ऐसा था, उस कंपनी का मैनेजर ऐसा था, वो मेरे साथ ऐसा करते थे, भले वो सच हो, आप बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो अपनी कंपनी में फिर ये लेगी, क्या अगर ये उस कंपनी के बारे में ऐसा बोल सकते तो मेरी कंपनी के बारे में क्यों नहीं बोलेगा, वो बोलेगा। आप इतना स्मार्टली आंसर प्रिपेयर करो कि मुझे वहां पे ग्रोथ नहीं मिला, मुझे और लर्निंग करनी थी, और सैलरी के ऊपर कभी फोकस मत करो जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइक। ये रेड फ्लैग है। हाइक कभी आपका आंसर होना ही नहीं चाहिए किसी स्विच के लिए, किसी कंपनी में स्विच के लिए। लर्निंग होना चाहिए आपका। यू कैन से अगर मेजर रीजन है कि फ्रेशर हो और उसी कंपनी में वर्क करना चाहते हो, ये एक रीजन हो सकता है कि मुझे किसी और कंपनी में वो चीज लग नहीं रही है जिसमें मेरी लर्निंग अच्छे से हो पाए, तो मुझे आप ही कंपनी लग रही है। मतलब ऐसे आंसर, पॉजिटिव आंसर्स दो। किसी कंपनी के बारे में बुरा, किसी एम्प्लॉयर के बारे में बुरा बोलोगे तो फिर वो रेड फ्लैग है। And last, follow up, like send a thank you email expressing appreciation or your interest. Like see, अगर आपका इंटरव्यू हो गया है ना, लेट सपोज वो वर्चुअल हुआ, एक मेल कर दो HR को, एक व्हाट्सएप मैसेज कर दो, थैंक यू फॉर टेकिंग माय इंटरव्यू, इट वाज वेरी ग्रेट, आई एम होपिंग फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। अगर आप ऑफलाइन हो उसमें आप बोल दो, टेलीफोनिक हो उसमें आप बोल दो। लाइक एक ऐसा अप्रिसिएशन उसे एक्सप्रेस करो कि उसे अच्छा लगे कि हाँ यार, ये बंदा तो इंटरव्यू के बाद भी थैंक यू बोल रहा है मुझे, ठीक है। इनमें अब सारे पॉइंट्स में किसी कुछ डाउट, 10 पॉइंट्स मैंने बोले हैं। नाउ आई एम ओपन फॉर द डाउट्स। यस, एनीवन? I have one query. यस Uh, शुभांगी। When they ask for the strengths and weaknesses, we are very comfortable with our strengths. We share it very confidently. But when Right. it comes for weaknesses, हाँ, how we should take and what to be told in that case? ठीक है। अपनी रियल वीकनेस कभी मत बताना, फर्स्ट पॉइंट, कभी भी नहीं। जो आपकी रियल वीकनेस है, बिकॉज वीकनेस इज द रीजन कि HR आपको नो बोलेगी, ठीक है। रियल वीकनेस कभी नहीं। वीकनेस ऐसी बताओ जो आपके काम को कभी कभी डिस्ट्रैक्ट ना करे, कभी हैम्पर ना करे।
लेट सपोज आपकी वीकनेस है, you can't say laziness, you can't say impatient, you can say I'm sensitive, you can say I go for the hard working rather than smart working, this is my weakness. Weakness is not like bad things, no, कभी नहीं होता. Weaknesses आपकी कभी बुरी में नहीं आती है, ऐसा कभी नहीं होता strength है तो वो अच्छी चीज होती है, weakness तो बुरी चीज होती है, नहीं. Weakness मतलब हर इंसान की अलग अलग weakness होती है, right? Weakness is the point कि जहां पे आप weak पड़ जाते हो, जहां पे आप कॉन्फिडेंस लो फील करते हो, वो कौन कौन सी चीज है. इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी चीज है, सबके अंदर वीकनेस है, मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर होगी, और सारे बच्चों में होगी, इवन खुद एचआर में भी होगी जो इंटरव्यू ले रही होगी, है ना. बट यू कांट शो द रियल वीकनेस ऑफ डोंट शो योर साइड ऑफ वीकनेस, द रियल वीकनेस. हमेशा ऐसे वीकनेस के साथ जाओ, आप गूगल करो, चैट जीपीटी करो, जो आपके काम को हैम्पर ही ना करे. एचआर के माइंड में एक टाइम के लिए भी ना है कि यार इसके अंदर तो इम्पेशंस है, मतलब इसको ज्यादा वर्क दे दिया या फिर कुछ भी, ये तो भड़क जाएगी या भड़क जाएगा, है ना. लेजीनेस, यार ये तो काम ही नहीं करेगा, है ना. कुछ और बोलोगे वो सेंसिटिव वर्क्स कर जाएगा, मैं सेंसिटिव हूँ. और क्या बोले, मतलब सोचना पड़ेगा थोड़ा, बट हाँ आप थोड़ा ना कर सकते हो, गूगल गूगल करो. 2-3 वीकनेसेस अपने माइंड में डाल के रखो जो आपको हर इंटरव्यू में बोलना है, हर कंपनी को, हर एचआर को, ठीक है. Okay. कि ये मेरी वीकनेस है जिसपे उसका क्रॉस क्वेश्चन ना उठे, बल्कि उसे और सिंपैथी हो तुम पे, ठीक है. आप बोल दो मैं इमोशनली बहुत एक्टिव हूँ, मैं आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, या बोल सकते हो शॉर्ट टेम्पर्ड वर्क करेगा, ठीक है. शॉर्ट टेम्पर्ड इसीलिए क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड में उसको ये पता है कि वो उसको बस गुस्सा आता है, वो ये कभी क्वेश्चन नहीं कर सकती कि अच्छा मैं आपको काम दूंगी तो गुस्सा आएगा, नहीं, उसको पता होगा कि यार बस गुस्सा ही तो आता है ये. बट वहीं पे अगर आप बोलोगे ना इम्पेशेंट, इम्पेशेंट बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा फिट नहीं बैठेगा वीकनेस में, क्योंकि एचआर उसमें फिर क्रॉस क्वेश्चन करेगी कि आप तो इम्पेशेंट हो, मतलब आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, हम आपको कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा. शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा ना बहुत वैसा होता है, काइंड ऑफ चूजी होता है, कि उसे पता होता है उसे अपनी शॉर्ट टेम्पर्डनेस कहाँ दिखानी है. Right. ओके. तो लेट मी गिव यू माय वीकनेसेस विच आर वेरी वर्स्ट. मैंने कभी स्पीक आउट नहीं की है. आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, आई एम वेरी इम्पेशेंट, आई एम वेरी लेजी. दीज आर माई 3 वीकनेसेस, और ये किसी को नहीं पता, ठीक है. स्टिल आई एम प्रिटेंडिंग, यहाँ पे ऑफिस में प्रिटेंड करना पड़ता है. हम ये सारी वीकनेसेस उनके सामने ही शो कर सकते हैं जहां पे पता है दैट पर्सन और दैट दैट एनवायरनमेंट इज नॉट गोना जज अस, है ना. तो Yes. डोंट शो योर रियल साइड ऑफ योर वीकनेसेस. हमेशा आप, कंपनी है ना, कंपनी इज नॉट योर फैमिली, कंपनी इज नॉट द इमोशनल थिंग. वर्क लाइफ है, कंपनीज आपकी चेंज होगी हमेशा. तो आप ट्राई करो जितना प्रिटेंड कर सकते हो कंपनीज में, जस्ट फॉर 8 hours, sake of 8 hours. Okay. So if I take few of mine, like I want to do all the work myself, not delegating the task could be the weakness that I can share. Yeah, I that is a major weakness here. You can't say like this that I delegate the tasks. No. फिर No, उसे I लगेगा कि don't ये तो delegate the task. I try to do at certain points. I try to do work myself rather than delegating. So it's like overwork हो जाता है कभी कभी. हाँ, That could be the kind of weakness we can share, right? Because right. It will work. Yes, we would have absolutely. a HR interview in coming few days. So Yes. this session is definitely going to help me today. Yes, it will work. Okay, fine. Yeah. Anyone? I have one more. Yes, Now, Shubhangi. when they ask for the package expectations, Yes. there are two things. We express our margin, or we ask them for their margin. What is the best thing? Go for their margin first. Okay. Okay. Just listen to them. Say okay. Okay. जब तक आपका टेक्निकल राउंड नहीं हो जाता, जब तक आपका ये लगता नहीं है कि यार मेरे 1 राउंड हो गया, 2 राउंड, फर्स्ट राउंड में कभी भी आप अपनी एक्सपेक्टेशन मत ही बताना. जस्ट से ओके, आई नो, आई हैव रेड इन द डिस्क्रिप्शन दैट यू आर प्रोवाइडिंग दिस मच, ठीक है. आप वहां पे ओके बोलना, ये नहीं कि कंफर्मेशन दे देना बिल्कुल दैट या आई एम गुड ऑन दिस. वो पूछेगी भी नहीं इतना, फर्स्ट राउंड में कोई नहीं पूछेगी, ठीक है.
बट अगर थर्ड राउंड हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपका सैलरी डिस्कशन होता है, नेगोशिएशन होता है, देन यू शुड डिमांड समथिंग, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी एक सैलरी नेगोशिएशन का भी एक सेशन लूं कि कैसे आप अपनी डिमांडिंग सैलरी, अपनी एक्सपेक्टेशन और उनका जो मार्जिन है उसको कैसे अप एंड डाउन कर सकते हो, जिसमें आप भी खुश और वो भी अग्री हो जाए, है ना। तो इसके लिए मैं ट्राई करूंगी एक सेशन, इसके लिए प्लान करूं मैं, बिकॉज सी आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे भी मार्जिन मिलता है फ्रॉम द owners or the directors that you have to close this guy at 25 per month, बट मैं ट्राई करती हूँ कि 20 पे हो जाए, मैं ट्राई करूंगी 22 पे हो जाए। मेरे पास काफी ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो मेरे को अपनी इतनी ज्यादा स्किल्स गिनवा देते हैं, इतना ज्यादा इंप्रेस कर देते हैं कि मैं 25 पे डन कर ही देती हूँ, ठीक है। और इवन मुझे ऐसा लगता है मैं उनको 30 पे भी डन कर सकती हूँ, है ना। तो ये बहुत ही मेजर चीज है, क्योंकि सैलरी की वजह से भी बहुत लोग हैं जो सारे इंटरव्यूज क्रैक कर लेते हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ द सैलरी वो ज्वाइन नहीं करते या ज्वाइन नहीं कर पाते, Okay. है ना। Yes. तो उसके मैं ट्राई करूंगी शुभांगी कि I'll take a session for that also. Okay, sure. Yes, anyone? Prabhat, okay, there's iPhone 15 here. Adarsh, Pawan, anyone? Hargun? Documents. I shared my query in the chat. Yeah, okay. Sonia, just wait. I'm going with Pawan first. Yes, Pawan. Yes, Pawan. Let me Like, stop sharing my screen. Yes, Pawan. I'm like having this situation, like I'm not feeling sometimes very confident during the interviews or whenever I receive a call like regarding we have scheduling your interview, and like for the process I don't feel such confident. Like I don't know what happened. Like I have done my technicals, I have seen your everything what you have shared, but I don't feel so much confident about it. Mm-hmm. This So, is the major weakness I am having. ओके सी ये वीकनेस है, बट आप बता तो नहीं सकते हो एचआर को, Right. राइट। एंड आप शो भी नहीं कर सकते दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, है ना। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? आप कॉन्फिडेंट बन जाओ, प्रॉब्लम क्या है?